Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome. You all are welcomed here. My dear students, as you know that we have finished our syllabus in both books as well as English grammar also. Because before the half yearly term exam, I have taught you what would be asked in the final examination. So there we have started the revision. So it's a very important for each and everyone. Those who have not joined the class in the initially in the beginning, they can learn more again. And those who have learned, they will be strong in that topic in that lesson. So it's very good for you all. Keep well in any subject, any topic, I will teach it. If you tell me, sir, teach me this lesson, so I will teach. But from my side, I have started the revision. Got it? Everyone? Yes, sir. As per your demand, I will try to teach whatever you like. But this is my choice. Ki I wanted to give the revision to the lesson, so that I have started today. The first lesson of moment, the lost child. Right? Yes, sir. Hopefully, many of you have learnt it the lesson previously, and today see the more. And again, we learn a lot of things from this lesson. My dear students, in this lesson, if you see how a boy is going to be lost in a fair. He is going to the fair with his parents. The fair was overcrowded. It was a huge rush in the fair. Many more things were being sold. The boy was becoming tempted, greedy, and due to greediness, he was demanding the different things from his parents. Once when he was looking the roundabout swing, he became busy to see the roundabout swing, झूला इसे आप बोलते हैं, and then he lost his parents. Since it was overcrowded, so he couldn't find his parents. But suddenly, a strange person picked him up and wanted to quieten him. Wanted to quieten, quiet मतलब शांत होना. And wanted to quieten him by giving him the different things what he wanted from his parents. He didn't accept from the strange person. Since the person was strange, he had never seen it before, so he didn't accept what he wanted to give the child. But earlier when he was with the parents, he wanted everything to take from the fair. But when this man wanted to give, he refused all the things. It showed the bond of love. जैसा कि आपने सुना अभी, मैंने बताया, यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो स्प्रिंग सीजन में अपने मम्मी पापा के साथ वो मेला देखने जाता है। जब मेला देखने जाता है तो मेले में जैसा कि सब आप जानते हैं, डिफरेंट थिंग जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले मतलब
दुकान के सामने में जो है वो लगाए हुए रहते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। या देख करके बच्चा जो है कभी बोलता है स्वीट्स के लिए, कभी गार्लैंड्स के लिए, कभी स्नैक चार्मर के बारे में बोलता है, कभी राउंड अबाउट स्विंग के बारे में बोलता है, बट हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू टेक, लेकिन उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देते हैं। फाइनली हिज मदर ट्राइड टू डाइवर्टेड हिम, उसकी मम्मा जो है डाइवर्ट करती है और उसे कुछ ऐसे चीजों में लगा देती है जिससे बच्चा वह जो है दूसरे चीज को देखने में बिजी हो जाता है। फिर बच्चा जैसे ही उस तरह से उन सब चीजों को देख ले पर चली जाती है और फाइनली ये होता है कि एक समय वह झूला देखने लगता है। उतने ही समय में उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। चूंकि मेले में काफी भीड़ थी इसलिए बच्चा अपने पेरेंट्स को खोज नहीं पाता है और वह बच्चा वहीं पर खो जाता है। संजोग बस एक जेंटलमैन, एक पर्सन जो है उसे देख लेते हैं रोते हुए और उसे उठा लेते हैं। उठा करके उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। उस मेले में वह हर चीज जो दिखाई पड़ता है बच्चों को वह देख करके बच्चा को शांत कराना चाहते हैं, बट बच्चा कंटिन्यूअसली जो है वो क्राई करता है, वीपिंग करता है, वो शांत नहीं होता है और एक ही चीज बोलता है, आई वांट माय पेरेंट्स, आई वांट माय पेरेंट्स। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। वही बच्चा जो मिठाई चाहता था, जो जलेबी चाहता था, खिलौना चाहता था, गार्लैंड चाहता था, लेकिन आज वो बंदा, वो व्यक्ति जो देना चाह रहा है, वो बच्चा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि बच्चा को मालूम है कि यह एक अजनबी पर्सन है, मैं इसे जानता नहीं हूँ, हो सकता है इनका इरादा गलत है। तो ये क्या है? राइटर जो है, लेखक हमें यह दिखाने का कोशिश किया है बॉन्ड ऑफ लव। वो बच्चा का अपने मम्मी पापा से कैसा बॉन्डेशन है, कैसा लव है कि वह ग्रीडी होकर के दूसरे के पास जाना नहीं चाहता है। वो फाइनली ये चाहता है, आई वांट माय पेरेंट्स, आई वांट माय पेरेंट्स। ही डिडंट एक्सेप्ट एनीथिंग। तो इस लेसन से आप सब बच्चों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी हमारे अपने पेरेंट्स यदि हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं और दूसरा कोई फुलफिल करता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। एक तो हमारे पेरेंट्स का अपमान होता है। मान लो हम कहीं पर रहते हैं और हमारे पेरेंट्स जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं दे पाते हैं और हमारा पड़ोसी या हमारा रिलेटिव कोई देता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे हमारे पेरेंट्स का अपमान होता है। उस समय तो पेरेंट्स बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है जरूर इस बात का कि देखो मैंने नहीं दिया तो वह किसी और से ले लिया। इससे हमें सीख लेनी है कि यदि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं दे पा रहे हैं तो हमें वेट करना चाहिए। उनके सामने कोई और दे और हम एक्सेप्ट कर ले तो फिर उसका यहाँ पर अपमान होता है। हमें नहीं लेना चाहिए। हमारे अपने पेरेंट्स यदि खुशी से हमें देंगे तभी हम लेंगे। तो ये कहानी में दिखाने का कोशिश करता है लेखक। इसे बॉन्ड ऑफ लव कहते हैं कि बच्चा का अपने मम्मी पापा से कितना स्नेह और प्रेम है। सो नाउ लेट अस सी हियर। आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन and you all see here. Wait please. First of all I would like to talk, you all 25 here, good. Today you are good in number here. Yes. Adil Alam, may I talk to you? Adil Alam. Adil Alam, can you hear me? Adil Alam, Adil, Adil, can you hear me? Yes, yes, sir. Can you hear me, beta? Yes, sir.
Adil, turn on video. Yes, sir. Adil, turn on your video, please. Yeah, good student Adil, looking very handsome. Okay, Adil, can you hear me? Yes, sir. Good. Now, I want to know from you. First, you tell me, have you read the story? Have you read the story? Yes, sir. Good. Where was the boy going? Where was After in the the boy fair. going? In the fair. Speak in a whole sentence, not half answer. Speak in a whole sentence. Where was the boy going? And the boy was going with her parents in the fair. Yeah, the boy was going to the fair with his parents. The boy was going to the fair with his parents. Very good. In this chapter, which season has been described? In which season the boy is going to the fair? What it season was? कौन सा सीजन था कहानी में? कौन सा सीजन दिखाया गया बेटा? Spring. Yeah, good. It was spring season, right? It was spring season. Spring season. Yeah. Thank you. Thank you, Adil. Now let's see. I would like to talk the other boy here. Aarti C, 9th B. Aarti C. Now the number became 21, but the children were 25. अभी तो 21 हो गए बच्चे हमारे, इससे पहले तो 25 था अभी. तो आप समझो कि अटेंडेंस तो उन्हीं की बनेगी जो लास्ट तक अपने टीचर के साथ बैठे रहेंगे और बात करते रहेंगे. लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और एक भी मैं जो है खोलने वाला नहीं हूं. आई एम नॉट गोइंग टू ओपन द ग्रुप फॉर अटेंडेंस. रिमेंबर यू ऑल, मैं अटेंडेंस के लिए जो है खोलने नहीं जा रहा हूं ग्रुप को. जो लास्ट में जो मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, जो स्क्रीन में दिखाई पड़ेंगे बच्चे, उन्हीं का अटेंडेंस होगा. पढ़ना है तो अपने टीचर के साथ बने रहना होगा लास्ट आवर तक. आरती, टर्न ऑन वीडियो. Yes, sir. नाइन्थ बी आप आरती हो? एक आरती सिंगल लिखा हुआ है, एक आरती 9th बी लिखा हुआ है बेटा. Sir, I am only Who- Aarti. यहाँ आरती डबल है, एक न्यू बच्ची है आरती ना. Yes, sir. एक आरती कोई न्यू है, एक शिल्पा तो लेफ्ट कर गई. चलो मैं देख रहा हूं उसे. आरती, न्यू स्टूडेंट आरती, कैन यू हियर मी बेटा? आप सुन रही हैं हमारी बातों को? Yes, sir. आई थिंक ही इज अनेबल. आरती सिंह, आरती सिंह, कैन यू हियर मी? One thing I would like to say here, Yes, sir. कि 8:50 your timing is. At this timing, till this time, you must get your bath. Be fresh, then join the class from tomorrow. Today I am going to excuse you, but from tomorrow, whatever the teacher is coming here at 8:50, before it you must get the bath. Take your bath. Be fresh, then join the class.
आप टीचर के ज्वाइन करने से पहले आप अपना स्नान कर लो बेटा घर पर, यू विल फील वेरी फ्रेश and you can learn a lot. So today I am not going to say any more, but from tomorrow just remember it. Okay, here. Yeah. Amis, can you hear me, Amis? Yes, sir. Can you hear me, beta? Yes, Yeah. sir. Good. Have you read the chapter? Good. Yes, sir. Okay. In this chapter, about which plant it has been explained? Sir, it was a Gulmore of Garland, sir. सर सरसों कहते हैं सर हिंदी में सर उसे. Yeah, mustard. Yes, sir, Mustard field. Yes, It sir. was mustard field where the child was playing. Yes, Na, sir. and he saw so many butterfly looking very charm, beautiful scene. Here his mother diverted him, na, right? It was a mustard oil. सरसों का पौधा था ना, वो खेत थे, उसी में पीले पीले सरसों लगे हुए थे और बच्चा वहां पर बटरफ्लाई को देख करके डाइवर्ट हो गया था और वो डिमांड करना छोड़ दिया. लेकिन जैसे ही उधर से वो बच्चा हटता है फिर वो जो है अपना फेयर में उसका ध्यान चला जाता है, फिर डिमांड करने लगता है. राइट? या या गुड. नाउ लेट्स सी हियर. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. Yeah. You remember, I will take again screenshot. Don't leave the class. मैं स्क्रीनशॉट लूंगा अभी एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद. वही अटेंडेंस आपकी मानी जाएगी बेटा. चलो यहां से. यस, सस्मिता महापात्रा है लाइन पर. सस्मिता, आर यू हियर? Yes, sir. Read this. Sasmita, read. Yes, sir. What happened, Sasmita? Sir, I'm starting. Yeah, start it. What are you doing? It was the festival of spring from the wintry No, shades of red. yellow. जो रेड है उसको पढ़ो पढ़े बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये Okay. रेड कलर में है ना, उसे पढ़िए आप. Okay, sir. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? गुड. यस, वेरी गुड. आपने देखा कि अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. अ चाइल्ड गोज मतलब थर्ड पर्सन है, एक बच्चा है ना, थर्ड पर्सन है बेटा. गोज, गोइंग नहीं है, वेंट नहीं है, गोज है. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के साथ मेला जाता है. ही इज हैप्पी, बहुत खुश है. एंड एक्साइटेड भी है. एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. अब यहाँ पर डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो डिस्प्ले मीन्स क्या होते हैं सस्मिता? सर दिखाया हुआ. यस, जो सामने, जैसे आप दुकान में जाते हैं मार्केट पर और जब सामने में जो है लटकाया हुआ रहता है हैंगर से, सबसे फर्स्ट इन करते करते सामने में जो होता है उसको हम डिस्प्ले कहते हैं. उसे देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि इस शॉप में, इस दुकान पर कौन कौन सामान और कितने अच्छे अच्छे सामान बिकते हैं. तो वो डिस्प्ले हो रहा, मतलब हर दुकानदार अपने अपने सामने में लगाए हुए हैं और वो बच्चा जो है उसे देखकर काफी खुश हो रहा है और एक्साइटेड है, खास करके मिठाई और खिलौने को लेकर के.
बट हिज पेरेंट डोंट बाई, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं खरीदते हैं देम फॉर हिम। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज, वह नहीं खरीदते हैं, उसके मम्मी पापा तो खरीदते नहीं है ना। तो मेन क्वेश्चन यहाँ है कि व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब दूसरा कोई देता है तो क्यों रिफ्यूज कर देता है भाई। यही तो क्वेश्चन है और यही चैप्टर है, which I earlier mentioned here. It show the bond of love. The boy was not greedy, right? He doesn't wanted to take anything from a strange person. Be aware of a strange बोलते हैं ना, be aware of a strange, जो strange होते हैं उनसे सावधान रहना है। या अगेन सस्मिता, नाउ स्टार्ट। It was the festival of spring. From the wintry shades of lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little कैरिड, boy, one little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Laughter. या द सेम मणिशंकर झा, you read the same paragraph. I would like to see from you. या मणिशंकर झा, सेम पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा। सर वो आपके वॉइस को नहीं सुन रहा। कहाँ चले गए? कैन यू हेयर मी मणिशंकर? माय डियर स्टूडेंट मणिशंकर, कैन यू हेयर मी? चलिए बिट्टू आप पढ़िए बेटा। आप पढ़ो It बेटा। was the festival. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a glad humanity. Some walked road, some walked, some आपकी आवाज नहीं आ रही है rode बेटा, फिर on से। horse, bamboo and bull cart. या नाउ लिसन टू मी यू ऑल। थैंक यू बिट्टू। अब आप मेरी बात सुनेंगे सही बच्चे। नाउ लिसन टू मी। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन था, बसंत ऋतु का दिन था। फ्रॉम द विंट्री सेड, विंट्री मतलब जाड़े की, करा फ्रॉम द विंट्री सेड्स ऑफ नैरो लेन, करा की जो गलियां थी ना, पतली पतली गलियां थी, लेन मतलब गली होता है बेटा। फ्रॉम द विंट्री सेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एले एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, करा गैली क्लैड ह्यूमैनिटी क्या होते हैं? जैसे गांव में आप देखेंगे, गांव की जो गलियां होती है बहुत संकरी होती है, और उसमें बहुत सारे लोग जो है जब जाते हैं तो क्या होता है कि धूल ये सब उड़ते रहते हैं। तो एक वहां का जो इन्वायरमेंट है ना, वो देखने से जो है ना, इन्वायरमेंट में एक अजीब जो है, चारों तरफ जो है, चूंकि गली कम है, जगह कम है, बहुत लोग हैं, तो हर तरह जो है एक ह्यूमैनिटी माने मानवता की छाप दिखाई पड़ती है। माने जहां देखो जहां लोग दिखाई पड़ते हैं, माने दो चार लोग भी होंगे तो लगता है कि गलियां पूरी भरी पड़ी है। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम रॉड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर जा रहे थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट, और कुछ लोग बैलगाड़ी में जा रहे थे। वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा लड़का, लिटल बॉय है, अपने पेरेंट्स के पैरों के बीच से घुस घुस करके भाग रहा है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, करा अपने इस जीवन को खुशी खुशी मतलब पूरा प्रसन्न हो करके वह जो है कभी मम्मी के इधर कभी पापा की तरफ होते हुए वो खुशी से पैदल जा रहा है।
come child come called his parents. पापा उसे बुलाते हैं, बच्चा चलो चलो चलो. And he lagged behind. Lagged behind मतलब क्या होता है? पीछे छूट जाना. Lagged behind मतलब पीछे की ओर छूट जाना. Fascinated by, क्यों पीछे छूट गया बेटा? लिखा हुआ है fascinated by the toy in the shops that lined the way. Fascinate मतलब attract. Fascinate मतलब attract. या क्यों पीछे छूट गया बच्चा? करा कि एज ही लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड बिहाइंड मतलब होता है पीछे होना. पीछा क्यों हो गया? क्योंकि वो खिलौना देखने में अट्रैक्ट हो गया ना बेटा. फैक्सिनेटेड बाय द टॉय, वो खिलौने देख के अट्रैक्ट हो गया, इसलिए देखने लगा तो पीछा हो गया. मम्मी पापा आगे निकल गए तो लिखा हुआ ही लैग्ड बिहाइंड. तो लैग्ड बिहाइंड समझ गए सभी बच्चे हमारे? Yes, एवरीवन समझ sir. गए? Yes, अच्छा, अभी sir. 23 है. Yes, sir. अच्छा, अभी लैग्ड बिहाइंड सब समझ गए बच्चे ना? आप मैं स्क्रीनशॉट ले लूं थोड़ा सा आपकी, फिर देखूं, तब मैं आपसे बात करूं. आज कौन लास्ट आवर तक हमारे साथ टिके हुए हैं बच्चे हमारे? या मनीशंकर, कैन यू हियर मी? सर उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है. कहाँ चला गया बेटा? क्या हुआ बेटा? सर उसने अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया. अच्छा अच्छा, ओह माय गॉड. अच्छा, अमृता साहनी, कैन यू हियर मी बेटा? अमृता साहनी, अमृता, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? अच्छा, श्रेया लोहमट, कैन यू हियर मी? यस सर. गुड गर्ल है, हमेशा ऑलवेज रेडी. चलो आ जाओ सामने, मतलब टर्न ऑन योर वीडियो. यस श्रेया, लैग्ड बिहाइंड. अभी हम लोगों ने पढ़े ना, लैग्ड बिहाइंड मींस बेटा पीछे हो जाना. पीछे हो जाना. फैक्सिनेट, फैक्सिनेट मींस आकर्षित होना. या अट्रैक्ट हो जाना ना. अट्रैक्ट मीन फैक्सिनेटेड. तो व्हाई ही बिकेम फैक्सिनेटेड? व्हाट ही सॉ इन द फेयर? The What he toys. saw? A toys. Yeah, that's why he became lagged behind his parents, right? Where the toys were, where he saw the toys? In the way, the shop. In the way. Yeah. On the way when he was going in the fair, many shops were going to doing display. Now it was displayed by the shopkeeper on the way where he saw, and he became attracted, fascinated, right? With whom he was going to the fair? With whom? His parents. Parents. Other person were going how? Some are by walking, some are ride on road horses, and some are from the bullock carts. Very good, very good. I'm very happy. Yeah, it means you are hearing this story. Thank you. Now let's see here again. I'm sharing again. I will ask from you. Yeah. Shops and lined the way. He hurried towards his parents. He hurried. हरी है बेटा, हरी मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी में भाग करके अपने पेरेंट्स के पास चला गया क्योंकि वो पीछा हो गया था. He hurried towards his parents. His feet obedient to their call. His feet obedient मतलब उसका पैर उसी की तरफ बढ़ रहा है जिधर से आवाज आ रही है. Obedient मतलब क्या होता है? ओबे करना. तो उसकी जो पैर है ना वो ओबे कर रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रही है. द फीट वाज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन वेयर इट वाज द कॉल, मींस फ्रॉम द वॉइस. वेयर द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन हिज फीट वाज गोइंग. उसके पैर उसी दिशा में जा रहे थे
जहां से उसकी पेरेंट्स की आवाज आ रही थी। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज। और उसकी जो आंखें हैं ना, आंखें अभी भी लिंगरिंग मतलब होता है उसी के ऊपर पड़े रहना। लिंगर मतलब देर तक देखने को कहते हैं लिंगरिंग। ठीक है, लुक एट ऑन द रिसेंडिंग टॉय। रिसेंडिंग टॉय क्यों है? आप पीछे पड़ गए, वो खिलौने क्या हो गए, आगे बढ़ गया ना, तो बच्चा तो आगे बढ़ गया, खिलौने पीछे हो गए, इसलिए बोलते हैं रिसेंडिंग, है ना। जैसे डिसेंडिंग होते हैं, यह रिसेंडिंग है, मतलब पीछे के खिलौने को वो देखते जा रहा है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहां वे लोग रुक करके उसका इंतजार कर रहे थे, बच्चा वहां पहुंच जाता है। He could not suppress the desire. suppress मतलब रोक पाना, ब्रेक लगा देना। करा कि अपने जो डिजायर है उसकी विश, डिजायर मतलब क्या होता है, विश माने वांट, वो चाहता था ना, तो ही कुड नॉट सप्रेस, वह रोक नहीं सका बेटा। सप्रेस मतलब कि क्या है, स्टॉप कर देना, ब्रेक कर जाना। वह नहीं रोक पाता है अपनी डिजायर को ऑफ हिज हार्ट, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. उनकी आंखों में के रिफ्यूजल का साइन था। इट वाज द साइन ऑफ रिफ्यूजल। उनकी आंखों में रिफ्यूजल का साइन था। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, नॉट माने किसी बात को डिसोबे कर देना, किसी बात को क्या करना, डिसोबे करना। बच्चा जो है वो मांग रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या थे, वो डिसोबे कर रहे हैं, रिफ्यूजल कर रहे हैं, वो उसे दे नहीं रहे हैं। उसे पता था, बच्चा को मालूम था कि ही न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, मतलब उनके मम्मी पापा के आंखों में साइन था। इट वाज द साइन ऑफ रिफ्यूजल, मैंने उनकी आंखों को देखने से पता चल जा रहा था कि वो देना नहीं चाहते हैं, मतलब दिलाना नहीं चाहते हैं बच्चा को। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। प्लेडेड मतलब रिक्वेस्टेड, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्टेड। प्लेड है ना बेटा, PLEADED, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्टेड। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड, वह रिक्वेस्ट करता है अपने मम्मी पापा से, मुझे खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे। उसके पापा लाल लाल आंख करके बच्चे की तरफ देख रहे हैं। इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, टैरेंट मतलब क्या होते हैं, भय, मतलब उसके तरफ लाल लाल आंखें करके इस प्रकार से, सॉरी डू वांट एनीथिंग, टैरेंट मतलब फियर, टैरेंट्स वे है। टैरेंट मतलब क्या होते हैं, किसी को पैनिक वे में, डराते हुए। जैसे हमारे पेरेंट्स जब गुस्साते हैं तो क्या है, उनकी आंखों जब आप देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे आंख का ना, जब मान लो किसी बात को इग्नोर कर रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो अपनी आंखों को एक्सप्रेशन देखेंगे और वो उनकी आंखों में एक भय, फियर दिखाई पड़ता है, उसी को टैलेंट बोलते हैं। तो बच्चा को चूंकि वो दिलाना नहीं चाहते थे, तो अपनी इस गुस्सा को वो आंखों के द्वारा जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। मम्मी क्या कर रही है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर। हिज मदर मेल्टेड, हिज मदर मेल्ट मतलब पिघल जाती है, मतलब उसकी मम्मी को दया आ जाती है। मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना, पिघलना मतलब क्या, दया दिखाना। माने उसकी मम्मी पिघल जाती है। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। उसकी मम्मी उसकी बच्चे को उंगली पकड़ाती है अपना, मतलब एक एग्रीमेंट है, वो चाहती है शो करना कि हम जो है मतलब पापा तो लाल लाल आंख दिखा रहे हैं, वो भैंस से देख रहा है बच्चा को, तो इधर मम्मी क्या करती है, वो थोड़ा सा अपना एक इमोशनल दिखाती है और बच्चे को जो है उंगली पकड़ाती है। सेड, और उसे बोलती है, उंगली पकड़ा कर बोलती है, लुक चाइल्ड